Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. So in today's video I will covering the topic perfect competition market and regarding what is the perfect competition market, and we will discuss about some of its feature. But before that we should study what is the market, what is the basic definition of the market. So let's get started. So for an individual मीन्स फॉर अ कॉमन मैन मार्केट इज़ जस्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कि जब भी हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज होती है दैट एक जोग्राफिकल एरिया, एक फिजिकल एरिया, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक कॉमन मैन के लिए. बट फॉर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग. सो लेट्स सी टू इट दैट व्हाट इज इट. So market refer to the system and the arrangement that bring buyer and seller in contact with each other. And for what purpose? For selling and the purchasing of the good, and it also include electronic mail and the telephonic communication. Now what it mean that for an economic student market have some special meaning. What is it? that market include all the arrangement जो हमारे buyer और seller को contact में लाती है for selling and purchasing of the good. और market is not just a shopping complex, और हम उन्हीं चीज़ों को मार्केट नहीं बोलेंगे जो फिजिकल एरिया है हमारा, बट मार्केट के अंदर हमारी जो ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे. सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है कि इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. कि मार्केट एक सिंपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, एक ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट उसी को कहेंगे जो फिजिकल एरिया हो, जो हम देख सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग को भी वो भी चीज़ हमारी मार्केट में इंक्लूड होएगी. सो मार्केट इज़ द अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. फॉर व्हाट पर्पज? फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द गुड, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, और in simple an online platform, online shopping. That's it. So now we have learned the basic definition of the market. So let's move to our topic, that is the perfect competition market. So now what is the perfect competition market? What is the meaning of the perfect competition market? So let's look into it. That perfect competition market is a market in which there is large number of buyer and seller. बायर और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं. प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट सप्लाई एंड द मार्केट डिमांड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड? नाउ दिस इज़ जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन एंड वी विल स्टडी दिस when we study the features of the perfect competition market. But for now, perfect competition market is one in which there is large number of buyer and sellers selling homogeneous product, and here price is fixed, that is decided by the market supply and market demand. So we will study it in the feature that what is it, what is the homogeneous product, what is the market supply and what is the market demand, and how price is determined. So let's move to the features of the perfect competition market. So the first feature of the perfect competition market is that in this market there are large number of buyers and sellers of the commodity. Feature number 1 कि perfect competition market में बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं. So the number of buyers are so large that demand of individual buyer is small fraction of the market demand, and the number of seller are so large that supply of individual seller is small fraction. क्या मतलब कि since बहुत सारे buyer और बहुत सारे seller होते हैं कि एक individual buyer और individual seller का जो share होता है वो एक small fraction होता है, वो छोटा सा होता है total market demand और total market supply में. So as a result क्या होता है कि thus no matter demand of individual buyer increases or decreases, market demand remain constant, remain unchanged. कि since जो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर का जो हिस्सा होता है वो बहुत कम होता है, कि जो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर की अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज आ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो उसका टोटल मार्केट डिमांड और टोटल मार्केट सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर होते हैं. सो हेयर इट इज़
the first feature that there is large number of buyers and sellers of the commodity, कि एक सिंगल बायर और सिंगल सेलर की क्वांटिटी के अंदर एक सिंगल बायर और सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस नहीं करते टोटल मार्केट डिमांड और टोटल मार्केट सप्लाई में. Now we move toward our feature number second, that in perfect competition market sellers sell the homogeneous product. That we have also learned in definition that perfect competition में homogeneous product sell करते हैं. अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे that what is the homogeneous product. So a product is said to be homogeneous when each unit of it is identical. मतलब हर एक जो यूनिट सेल हो रही है वो सेम है, एक जैसी है, डिटो कॉपी है इन साइज, शेप, कलर, वेट, एक जैसी है बिल्कुल. सो उन प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में सेलर सेल दी होमोजीनियस प्रोडक्ट. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट एक जैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एडवर्टीजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली हम एडवर्टीजमेंट तो करते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो और उस डिफरेंट क्वालिटी को दिखाने के लिए करते हैं. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एज सच नहीं है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम ही हैं. सो एज अ रिजल्ट कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, तो कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती इस मार्केट के अंदर. So this is our feature number second, that the seller sell the homogeneous product and there is no advertisement and the selling cost in this market. Now our feature number third is that perfect knowledge. So in this market there is the whether there is buyer, whether there is seller, they are fully aware of the prevailing price in the market. So thus higher price profit through price discrimination is ruled out. Now what is the price discrimination? It means that जो बायर और सेलर को फुल नॉलेज होती है रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग प्राइस, सो जो सेलर होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बायर डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, एक सेम कमोडिटी का, एक ही कमोडिटी का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है. तो सिंस बायर को नॉलेज है प्रिवेलिंग प्राइस की, तो सेलर बायर को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ये डिफरेंट प्राइस नहीं चार्ज कर सकता ऑफ द सेम कमोडिटी. सो इन दिस मार्केट द बायर एंड सेलर आर फुली अवेयर, दे हैव द परफेक्ट नॉलेज. नाउ द फीचर नंबर फोर्थ इज दैट in this market there is perfect mobility. So what in mobility is in the sense of the factor of the production, that in this market factor of the production under this market is perfectly mobile. वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जहाँ पर उन्हें हायर प्राइस मिलेगा वहाँ पर वो चले जाएंगे. सो द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, वो हाईली मोबाइल है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर दिस मार्केट इज परफेक्टली मोबाइल. दे विल मूव टू द इंडस्ट्री व्हेन दे विल गेट द हायर प्राइस, वेयर दे विल गेट द हायर प्राइस. Now we move toward the last feature of this market and the main feature, that there is no control on the price, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था. अब इसका एलैबोरेशन पढ़ेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. अब इंडस्ट्रीज और फर्म्स दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. इंडस्ट्रीज यहाँ पर यूज़ होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स के लिए, और फर्म यहाँ पर मतलब सिंगल फर्म जो होती है हमारी. सो यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रीज आर प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर द प्राइस टेकर. नाउ व्हाट इट मीन, दैट इंडस्ट्रीज प्राइस डिसाइड करती हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर हो गई, प्राइस मेक करती हैं, डिसाइड करती हैं. एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर, जो इंडस्ट्रीज प्राइस डिसाइड करती हैं वो फर्म वही फर्म प्राइस जो होती है वो यूज करती है. सो प्राइस इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट. अब इंडस्ट्रीज कैसे प्राइस डिसाइड करती हैं, जहाँ पर हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करता है वो प्राइस हो जाता है, वो प्रिवेलिंग प्राइस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस डी इज ऑन एक्स एक्सिस, देयर इज द डिमांड and supply, so and on y axis it is price. So dd is the demand curve. As we know that dd demand curve is negatively sloped, so here it is. And ss is our supply curve, that is positively sloped, upward sloping. And when the dd and ss curve meet at this point, this is the prevailing price.
So in this market, prices are fixed, that is decided by industries. So it has been said that in this market, industries are price maker and firms are price taker, and industries decide price where demand and supply curve meet. और यहाँ पर जो डिमांड का मतलब टोटल डिमांड से और सप्लाई का मतलब टोटल सप्लाई से. सो नाउ सिंस दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो, जहाँ पर हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मार्केट, सिंपल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा. अब सिंस बहुत सारी मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड monopoly market. So sometime students get difficulty in learning the features of the market. So here is the small trick you can use if you want, that how can we learn the 4-5 feature of the perfect competition market. So let's revise it. हमने feature number 1 पढ़ा था, that in this market there are large number of seller and buyer. So we can remember this feature by like this, that perfect competition market इज अ मार्केट. सो मार्केट के अंदर मेन क्या होता है, बायर होता है और एक सेलर होता है. तो उससे हमें याद रहेगा फीचर नंबर 1, दैट इन परफेक्ट कंपटीशन. अब बायर और सेलर का नेचर कैसा है, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन दी मार्केट. सो फीचर नंबर 1 ऐसे याद रहेगा कि मार्केट है, मार्केट बायर और सेलर से बनती है. तो फीचर नंबर 1 यही है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर कैसे हैं, लार्ज हैं, बहुत ज्यादा हैं. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ दी कमोडिटी. सेकंड, मार्केट है, बायर और सेलर है. अब बायर और सेलर कांटेक्ट में क्यों आ रही हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए, और उस चीज को हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट. सो फीचर नंबर 2 ऐसे याद होगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट. नाउ वी गेट इनटू द फीचर नंबर 3 और 4 को हम कैसे याद करें. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मार्केट जो है वो परफेक्ट है. सो उससे कुछ तो परफेक्ट मार्केट है, तो कुछ तो परफेक्ट होना चाहिए. तो परफेक्ट नॉलेज एंड द परफेक्ट मोबिलिटी, फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 4. एंड एट लास्ट, अब प्रोडक्ट जो है वो ऐसे फ्री में तो लेंगे नहीं, प्रोडक्ट का हम प्राइस कैसे करेंगे, नो कंट्रोल ऑन द प्राइस. हमने ऐसे यू कैन यूज दिस ट्रिक कि मार्केट है, अब मार्केट के अंदर बायर या सेलर कोई ना कोई तो होगा ही. तो कैसा है बायर और सेलर का नेचर, लार्ज है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. सेकंड, बायर और सेलर हो गया. अब बायर और सेलर इकट्ठे क्यों होते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का नेचर कैसा हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट. फिर थर्ड, प्रोडक्ट फ्री में तो लेंगे नहीं वो हमारे, तो कोई प्राइस होएगा, तो उससे याद रहेगा फीचर नंबर 3, नो कंट्रोल ओवर प्राइस. देन परफेक्ट है मार्केट, तो कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी. सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ अवर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दैट large number of buyer and seller, homogeneous product, perfect knowledge, perfect mobility, and no control over the price. Hope you like the video. Do like it with your friends, share it, and do subscribe my channel. And do let me know if if you want the video of the price determination under the perfect competition market. Thank you.